Hello everyone, my name is Upendra Verma and welcome to the Infinity Learn by the Sri Chaitanya. Okay, so in this chapter, in this session, we will discuss about the some question of the JEE Mains 2024. Okay, so just wait a minute. Okay, so in between the class, अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट, small concept or any formula, you can just raise your hand and you can ask me. Okay, so start with the first question, and the question is: a ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest positions are equal. ठीक है, तो अगर ये कोई थ्रेड है, lowest position and suppose it's extreme position, this is extreme position and this is theta. ठीक है, the angle of theta of the thread of deflection in the extreme, तो ये वाले angle theta we have to just find out. ठीक, okay, so at this extreme position velocity should be 0 and this mg is downward direction and this is 1 and this is 90 degree. So this is theta, this should also be theta. Yes, so mg cos theta, mg sin theta. समझ रहे हो? This mg is break down into the 2. तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा mg से? तो यहाँ पर जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन T इस पॉइंट पे कितना होगा? mg cos थीटा. ओके, अब देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये mg और T बैलेंस कर जाएंगे. नेट फोर्स नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फोर्स mg sin theta equals to m into a. This is suppose position number 1. So m cancel out, a1 equals to g sin theta. Okay, this is equation 1. Now come to the equation number 2. So this is what? This is mg balanced by this tension. This tension should be T dash. Okay, so mg balanced by T dash. But this position, velocity should not be 0. Velocity 0 nahi hoga. So what will be the velocity? The velocity in case of conservative force. So वहां पे हम, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस है, तो हम लगा सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का. दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? L माइनस दिस वन इज द L cos थीटा, दिस वन इज द L cos थीटा. ठीक है, तो L cos थीटा L, so L minus L cos थीटा. So this is the height. So mgh, m that means mass, g h की वैल्यू कितना है? L minus L cos थीटा. mgh equals to half m v square. क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये रेफरेंस लिया हूँ तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है ये. यहाँ पे मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी 0. सो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे. यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0. हियर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. सो m से m cancel. Okay, so and we already know g L 1 minus cos theta equals to 1 by 2, and we know that at this particular point acceleration is 0 because net force is 0. ठीक है, सो वन एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, बट एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. सो यहाँ से देखो v स्क्वायर अपॉन r l. सो v स्क्वायर अपॉन l इक्वल टू कितना हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन l इक्वल टू 2g 1 माइनस
cos theta. Understood? इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है, ठीक है। ये प्रैक्टिस लेक्चर है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि थोड़ा मैं आराम से पढ़ा, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, and when it comes to the magnitude, so magnitude is same, so g sin theta equals to कितना हो जाएगा आपका 2g 1 minus cos theta, ठीक है। so g to g cancel, अब sin theta को हम what we can write 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 equals to कितना हो जाएगा 2 टाइम इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस। ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करके क्या करते हैं ना कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos 2 थीटा की इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 से यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक साइन से एक पूरा साइन कैंसिल हो गया, 2 से अपना 2 कैंसिल हो गया, सो 1 बाई 2 इक्वल्स टू हाउ मच, 1 बाई 2 इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। डन। सो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई 2। So theta equals to 2 tan inverse 1 by 2. So option C is the correct one. Done? Okay, very good. Now move to the next question. A bullet is fired into a fixed target. कोई fixed target है, bullet fired हुआ, and 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeter. ये suppose 4 centimeter. So final velocity क्या होगा 1/3 v by 3. Suppose 1 minute. One minute. Okay, now done. ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ओके, सो कोई फिक्स टारगेट है, इसमें ये 4 सेंटीमीटर रीच करता है, 4 सेंटीमीटर, देन वेलोसिटी इज 1/3। सो यहाँ पे सपोज वेलोसिटी कितनी थी v, अब वेलोसिटी v था 1/3 हो गया, कितना 4 सेकेंड 4 मीटर, ठीक है। सो v फाइनल स्क्वायर v बाई 3 होल स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, तो u कितना है, u कितना है u, दैट मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन a इंटू 4 बाई 100। ठीक, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे 2a 4 बाई 100 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 9, तो 1 माइनस 1 बाई 9 स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, सॉरी v स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 9 v स्क्वायर, ये वैल्यू आपका हो जाएगा क्या, सो यहाँ पे देखो 4 से कैंसिल करोगे तो 25, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखो a की वैल्यू आ गई 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, दैट इज एक्सेलरेशन। So it penetrate further d into 10 to the power minus 3 meter
बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वैल्यू ऑफ डी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी 0। अब इसके लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v/3 का होल स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू s की वैल्यू पेनिट्रेट इंटू द d। सो डी स्क्वायर, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई 3 होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर बाई 3 दैट मीन 9 माइनस 2 ठीक है। अब देखो v स्क्वायर बाई 9 हो गया आपका एंड अपॉन 2a इंटू 1/2 इंटू a, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू दिस इज सॉरी हाँ। सो अब देखो क्या होगा, अब देखो 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 9 2 इंटू 9 ओके एंड 8/9 दैट इज v स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 25 दैट इज v स्क्वायर सो v स्क्वायर कैंसिल 9 कैंसिल 2 कैंसिल। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 8 1/200 मीटर। सो 10 टू पावर -3 दैट मीन्स इसको हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू पावर -2 दैट इज 10/2 इंटू 10 टू पावर -3। तो 2 5। तो ऑप्शन डी कितना होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही इजी था। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is this one. Yes. Given below are two statements. One is labeled as the assertion and other is labeled as the reason. The angular speed of a moon in its orbit about the earth, angular speed omega का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ओके, ओमेगा ऑफ मून, angular moon in orbit about the earth is more than the angular speed of the earth about the earth। तो ये greater than about of earth। ठीक है, अब देखो ये टाइम पीरियड अर्थ के लिए कितनी होती है 360 डेज 365 डेज नियर अबाउट 1 कंप्लीट। तो कितना हो जाएगा, और ओमेगा ई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई 365 omega of earth, omega of moon is equals to 2 pi divided by 28-29। मून कितने में चक्कर लगाता है 28-29। तो कौन सा ज्यादा होगा मून का। दिस इज द करेक्ट assertion is the correct one। The moon takes less time to revolve around the earth than time taken by the earth around the sun। assertion और reason दोनों सही है and correct explanation, both are the correct and correct explanation also। So option C is the correct। Good। Okay, one more question we have। the truth table of the given circuit diagram is, which one is the correct one, truth सही कौन है।
A, तो ये भी हो जाएगा A, that is A not. This is not, so that means A not. B, so B. This is not, B not. So this is and A and B. A and B. So A and B. Again A bar into B not. ठीक है. This is OR formula. और A और B. A और B, that means अगर ये P है suppose और अगर ये Q है, this is suppose Q. So P और Q में क्या देखेंगे, देखो और के लिए P सॉरी रिजल्टेंट y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू और मीन्स A और B. सो A और B में क्या होगा, प्लस होता है. सो P प्लस क्या होगा R इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना हो गया, A डॉट सॉरी बार B A B प्लस R का वैल्यू A डॉट B बार. ओके. अब देखो दिस इज द y. अगर A की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, देखो यहाँ पे A की वैल्यू पुट किया 0, B की 0, A की अगर मैंने 0 किया तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस B की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ऑलरेडी 0 था तो 0 प्लस 0, लेकिन यहाँ पे A दिया नॉट आंसर, नॉट करेक्ट. एंड 0 0 1, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. नाउ 1 1 रखते हैं, 1 1 रखते हैं. सो y की वैल्यू अगर इसका 1 रखोगे, a का 1 तो ये हो जाएगा 0 और b का वैल्यू 1 तो 1, 0 1 1 0. इसका अगर 1 रखूंगा 1 तो 1, इसका 0 1 का 0 हो जाएगा तो 1 0 0 0 0. अगर 1 1 रखूंगा तो भी 0, 1 1 रखूंगा तो भी 0. दिस इज नॉट करेक्ट. 1 1 का 1 आ जा रहा है, जब क्या होना चाहिए 0. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. देखो एक बार रख के देखो 1 एंड 0 का, देखो 1 एंड 0 का 1 यहाँ पे रखोगे, 1 का A का 1 1, B का 0, तो 0 का सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 का 0 और B का 1. ठीक है, समझ में आया. ये 1 था, ये 0, तो 0 और 0 प्लस A का 1 था, B का 0, 0 का हो जाएगा 1. सो 1 एंड 1 1. देखो आ गया 1. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ओके, वन मोर क्वेश्चन वी है. ठीक है. द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द रियल गैस इज P प्लस V A अपॉन V स्क्वायर इक्वल V माइनस B इक्वल टू RT. देखो ये वाला जो टर्म है सिमेट्री के हिसाब से देखोगे तो कोई चीज अगर मैंने 2 लिखा है, 2 में A ऐड करूंगा, नो, दिस टू आर डिफरेंट. 2 प्लस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 5. ये करेक्ट है. A प्लस B कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है. तो सिमिलर होना चाहिए. ओके, सिमिलरिटी के हिसाब से तो ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा प्रेशर. यस. सो A अपॉन V स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर. सिंपल है. A की वैल्यू प्रेशर इंटू V स्क्वायर. V माइनस बी, अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होगा. सो B इक्वल्स टू वॉल्यूम. ठीक है. सो A अपॉन बी स्क्वायर, A की वैल्यू कितना होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A अपॉन बी स्क्वायर. A अपॉन बी स्क्वायर, A अपॉन बी स्क्वायर मतलब V. So we cancel, that is P. Okay, option A is the correct one. Understood?
ठीक है, अगेन वन मोर क्वेश्चन भी है. So a heavy iron bar of weight 12 kg is having one end on the ground and other one on the shoulder of the man. So this is the man. ये इसका शोल्डर है, ये इंसान है, इसका पैर है. ठीक है, दिस इज द शोल्डर. तो ये क्या है, कोई आयरन का रोड है यहाँ पे रखा हुआ. ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम उतना सुटेबल नहीं है, बट ओके. ठीक है, अब देखो क्या होगा, कोई सरफेस पे कोई चीज होता है तो ऑलवेज एक्ट नॉर्मल वन. ये किसके होगा, परपेंडिकुलर होगा. बट यहाँ भी परपेंडिकुलर होता जब क्या होता कि इसके ऊपर रखना होता. ठीक है, जैसे इस तरह से कोई चीज है और इसके अगेंस्ट ये होता तो ये फोर्स नॉर्मल होता. लेकिन ये शोल्डर है इस तरह से और इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये नॉर्मल ऐसे होता. ठीक है, तो ये जो नॉर्मल होगा दैट इज दिस वन. एंड सपोज दिस इज द थीटा. This is perpendicular 90 degree. Okay. So theta 90, 90 minus theta. ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा. ये 90, अगर ये अल्फा करते हो तो कितना 90 90, ये कितना हो जाएगा थीटा. देखो कैसे, ये 90 हो गया 90, ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस सपोज ये अल्फा था, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180. 180 ये दोनों कैंसिल, अल्फा इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये सपोज नॉर्मल 2. अब क्या कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट में क्या होगा सेंटर ऑफ मास mg, टोटल लेंथ l, सो l बाई 2, l बाई 2. देखिए टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, यहां से लेते हैं टॉर्क. ओके ठीक है, अब देखो क्या होगा कि इसके अबाउट करते हैं तो हमेशा जो टॉर्क लेते हैं वो किसके अगेंस्ट लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस will be the perpendicular distance. So mg into l by 2 cos theta equals to, ये तो हमेशा क्या है परपेंडिकुलर ही है. ठीक, तो n2 into l कैंसिल, l कैंसिल. ठीक है, सो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 इक्वल्स टू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई 2. यस, अब देखते हैं एक चीज, अगर यहां से कुछ कैंसिल आउट करते हैं तो ये cos थीटा n2 cos थीटा mg और n1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अगर वैल्यू पुट अप करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट जस्ट वेट अ मिनट. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा आपका n2 cos थीटा और ये हो जाएगा n2 sin थीटा. हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो mg एक हो गया इक्वल्स टू n2 cos थीटा प्लस n1. ओके, समझ में आई बात. अब देखो cos थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है. अभी देखो ये कितना है थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो m की वैल्यू कितनी है 12 इंटू g की वैल्यू 10, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60, cos 60 1/2 अपॉन 2. सो 2 कितना हो जाएगा 2 to 4 4 3 टाइम, तो ये हो जाएगा T0 न्यूटन. n2 की वैल्यू न्यूटन है तो न्यूटन n2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 और 30 को हम लिख सकते हैं mg. सो मास की वैल्यू अगर पूछता है तो m केजी के टर्म में तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा सिंपल 3. ओके
Again, one more question. One label as a assertion, other one reason. In a Vernier caliper, if the positive error exists, अब देखो क्या होता है वर्नियर कैलिपर इस तरह से होता है, ऐसे एक हो गया तुम्हारा ऐसे, और इसके बीच में एक होता है मेन स्केल, सॉरी थोड़ा सा, ओके ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है ठीक है, ये हो गया दैट इज मेन स्केल, ये हो गया दैट इज मेन स्केल, और ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। तो अगर यहाँ से कुछ चीजें हैं और यहाँ से है, तो यही दोनों मेजर करते थे इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब देखो ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। अगर देखो क्या बोला है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब होता है ये वाला, ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे है, ये गैप है, पहले से थोड़ा दोनों के बीच में क्या ऑलरेडी गैप है, तो रीडिंग टेकन विल बी द मोर देन द एक्चुअल, पहले से थोड़ा दिखा रहा है, तो जब उसमें बॉडी रखोगे मेजर करने के लिए, तो उसकी जो गैप होगी वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, कितना दूरी पे टच होगा, ठीक है, ये गैप हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, पहले से कुछ है अंदर, उसमें ऐड करोगे तो वो प्लस में आ जाएगा। द जीरो एरर इन वर्नियर कर्व माइट हैव डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग, यस करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो ऑप्शन ए correct, B correct, and correct explanation. So both are the correct, and correct explanation option D is the correct option. ठीक है, now move to the next question. Okay, so a Wheatstone bridge principle is used to measure the specific resistance of a given wire having a length L, radius R. We know the formula R equals to rho L by area, and area that means rho L by pi r square. So here rho equals to r into pi r square divided by L, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला आपका आ गया। If the length of the wire gets doubled, then the volume of the specific resistance will be, देखो specific resistance only and only depend upon the nature of the material, okay, that is constant for the same मटेरियल। अगर आयरन का कोई मटेरियल है, कुछ लॉन्ग लेंथ इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल। One more questions. The threshold frequency of the metal with work function is given here. Threshold frequency, okay. So एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मटेरियल is equals to h nu minus phi. So this is the metal, and ये यहाँ से क्या आ रहा है, फोटोन। इफ फोटोन कोलाइड एंड ट्रांसफर एनर्जी, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो किसके इक्वल होगी, एच न्यू माइनस पाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट मीन मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इजेक्शन कैन टेक प्लेस। इजेक्शन बस हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो भी कोई बात नहीं, तो बस इन्हें इजेक्शन हो गया, दैट मीन्स ये जीरो हो गया। सो एच न्यू इक्वल्स टू, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल वर्क फंक्शन, सो न्यू इक्वल्स टू फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 6.63 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है,
इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता था? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर 90 जूल में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एच, प्लैंक कांस्टेंट कितना हो जाएगा? ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? ओके, सो प्लैंक कांस्टेंट इज 6.6712 to 10 to power minus 34. Just wait a minute. This I search because the constant is not given here. Just wait a minute. Planck constant. Value of Planck constant 6.62. Okay, yes, yes, correct. 6.62 into 10 to power minus 34. 1934 कितना होगा? 10 to power minus 50. So 6.63 divided by 6.62 नियर अबाउट ये दोनों तो कैंसिल। 1.6 into 10 to power 15, 1.6 into 10 to power 15. Threshold frequency आपकी B. Done? Done. Very good. Done, done, done. Okay. Now move to the next question. देखो क्या है कि पहले आप लोग सॉल्व करोगे 10 to 15 सेकेंड, then if you will solve the problem and give the correct answer, very good. फिर भी अगर आपको नहीं हो रहा है then we will solve that problem. ठीक है, प्राइमरी कॉइल N1, primary side of the transformer connected to a, देखो प्राइमरी that means V1 230, ये होता है VRMS वैल्यू, VRMS गिवन होता है, and frequency is 50 hertz. The term ratio N1 upon N2 is equals to 10:1. Load resistance connected to the secondary side is R2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 46. The power of the power consumed in it. अब पावर कंज्यूम कितना होगा? R की वैल्यू दिया है, V का वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, पहले निकालते हैं सेकेंडरी का पोटेंशियल। कैसे? देखो, वी नो दैट फैराडे लॉ सबको पता है, E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब कि ई मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रेजिस्टेंस 0 तो वोल्टेज हो गया। सो V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। V1 अपॉन N1, V2 अपॉन N2। अब V1 की वैल्यू कितनी है? 230। V2 की वैल्यू वी डोंट नो। N2 की वैल्यू, सॉरी N1 की वैल्यू, N1 अपॉन N2 10/1। So V2 equals to 23। ठीक है, V2 equals to 23 वोल्ट। डन। ठीक है, अब देखो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर सेकेंडरी कॉइल में V है, रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल्स टू आई आर, या फिर पावर वैसे भी निकाल सकते हो, V² अपॉन R।
23 into 23 upon R की वैल्यू 46, 2 टाइम इसे 2, 11.5. That is option B is the correct one. Done? Very good. One more question. The limiting force of static friction depends upon the area of the contact and the independent of the material. Area of the contact. No. It will depend upon the nature of the material. ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है. Roughness of the surface. Roughness of the surface. Nature of the surface. Limiting force of the kinetic friction is independent of the area of the contact and depends on the material. ठीक है. Option second is the correct one. Option first is the incorrect. Option D is the correct one. ठीक है. The current of 2 microampere. The current of 2 microampere. I की वैल्यू कितनी है? 200 microampere. The coil is moving. Moving coil galvanometer through the 60 degree. थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 degree. The current to cause deflection through pi by 10 radian. देखो जो करंट होता है, सॉरी जो डिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन. सो θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू I1 अपॉन, ठीक है. तो करंट कितना है? जब करंट है 200 माइक्रो एम्पियर तो 60, तो पाई बाई 6 था. थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय पाई बाई 10 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन L2 10 by 6 3 by 5. सो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 into 3 divided by 5, 120 micro ampere. So option A is the correct one. ठीक है. और इसी को एक टर्म और देते हैं. Deflection per unit current is known as sensitivity of the galvanometer. कितना सेंसिबल है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है थ्रू द पर यूनिट करंट. डन. ठीक. वन मोर क्वेश्चन वी हैव. सो during an adiabatic dq heat transfer should be 0. The pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. Proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio of Cp upon Cv for the gas is, okay. For the adiabatic process, we know that Cp P upon V to the power gamma equals to constant, and Cp upon Cv equals to gamma. So here we can say that P into proportional to the absolute temperature. Okay. So PV equals to nRT. So T की जगह पे क्या लिख देंगे? PV, because proportionality constant है. So यहाँ पे proportionality constant में रख देंगे क्या? P
v to the power 3. सो p अगर यहाँ पे k लगा करके कांस्टेंट रखते हैं तो p क्यूब v क्यूब अपॉन कांस्टेंट. सो p स्क्वायर v to the power cube इक्वल्स टू कांस्टेंट. 2 से डिवाइड कर दो. सो p v 3/2 इक्वल्स टू c. p v to the power gamma and p to the power 3/2. सो गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/. Done. Very good. The atomic mass of, देखो यहाँ पे क्या है, the atomic mass of 6C12 is U. तो mass of the C6C12 इक्वल्स टू कितना हो गया टोटल atomic mass 1 2 2 4 6 2 4 6 U. Mass of the 6C13 कितना हो गया आपका 13 13.00354 U. अब देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रहा है एक बार देखो. 6C12 कितना बन रहा है 6C13. समझ पा रहे हो बात को. तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ, एक बार देखो 1 न्यूट्रॉन, देखो 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 अब 1 13 बैलेंस हो गया प्लस एनर्जी. तो यहां से आप एक बात बताओ मास ऑफ द, यहां से अगर निकालोगे मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा यहां से निकालो. तो 13 हेलो 1 minute sir, just I was recording some video lecture, so 1 minute sir, just wait.